আছে বুঝতে পেরেছেন? এবার আমার জিএসটি এসব কিছু লাগছে না কারণ আমার জিএসটি কোনো কিছু চায় না। একটা ফেসবুক পেজের জন্য কোনো জিএসটি কেউ চাবে না। কিংবা ট্রেড লাইসেন্সও আমি করি নাই। এভাবে চলছে। এবার একটা তোমাকেও তো করতে হবে। হ্যাঁ, করবো। একটা রেডি করতে হবে যাতে কাপড়ের রিফ্লেক্সটা ভালো লাইটের মধ্যে আসে, কাপড়টা দেখতে ভালো লাগে আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সিনারি লাগে। ওটার জন্য একটা ঘর পুরো রেডি হয়ে যায়, টাইলস আজকে লাগাবার কথা ছিল, মিস্ত্রি আসেনি। টাইলস বসাতে হতো না, এখন ভালো ভালো কার্পেট ছিল। কার্পেটের কথা বলছেন তো, কার্পেটের যেই রেটটা পড়ে যাচ্ছে টাইলস সেই সেম প্রাইসের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমি একজনা কাটোয়া Recording in progress. ये जो 4 खलीफा है, पाकिस्तान, तुर्की, आपका सऊदी और आपका ईरान, मिलिट्री एलायंस अलॉन्ग विद कतर, तो उन्होंने वो जवाब दिया। ठीक है जी, तो सऊदी ने वो जवाब दिया। पाकिस्तान का फौज में से बात है कि जनाब कौन सा (9:32). Another 3 minutes. Just we started 9:35. Sure. I request if everyone can write down their full names on the Zoom ID. It's required.
And Gautam ji, can you please mute the members? Yes, I can. You also. Yeah. All admin can do. I Sure. co-host also. So, Subir ji, please mention your full name. Gaurav ji, HP ji. I don't know what HP is. SKB, please mention your full name. Shweta ji, please mention your full name. Gautam ji, Shweta ji is from my team. She'll be taking the notes so that nothing is missed. Okay. okay. Yeah. Good morning, everyone. This is every Saturday. We regular basis, whatever we are doing virtual session, training session for our MFD fraternity across the country, completely free of cost. This is your initiative from Team ICA. Today's two sessions, basically AI, how we use AI in our business. So everybody here already joined. Please mute yourself, and I handed over our speaker. Please Thank you so much, Gautam ji. and introduce yourself. Of course, sir. I will briefly introduce myself, and I will focus on the topic. Okay. So, Shubho Shakal to everyone. Let's have that energy in the team and energy in the room. And let's have everybody mute themselves other than myself. Subir ji, Sujay ji, Raju, Subra, could you please mute yourself? And Prithvi ji, you are not logged in into the audio, so I'm not too sure if you're able to listen. Yeah. Okay. Great. I muted everyone. Please unmute yours. Yeah. So again, Shubho Shakal to everyone. My name is Harkirat Singh Bedi, and I'm the CEO of a company called the CRM People. Okay. Independently, I'm also a trainer, and मैं ये जो सेशन है इंग्लिश हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन में रखूंगा ताकि सबको समझ में आए। और आज मैं आपके कुछ कोर बिलीफ्स को चैलेंज करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। हाउ टू अनलॉक द हिडन AUM इन द मार्केट। बोले तो जो छुपा हुआ AUM है, जो पैसा किसी को दिख नहीं रहा अभी, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे, तो हम वो सोच को पहले कैसे बदलें और वो पैसा हम कहाँ से लेके आए।
ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं जब मीटिंग में एंटर किया आज, तो एक मेरे को थॉट आया, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। दो चीज़ें हमें बहुत प्यारी हैं, हर किसी को बहुत प्यारी हैं, ओके। आपके इन्वेस्टर को, आपको, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं किसी एंगल से गलत हूं तो प्लीज मेरे को इंटरजेक्ट करके रोक दीजिएगा, टोक दीजिएगा। हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू। यू गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। पहली चीज है, हमारा नाम हरकीरत सिंह बेदी मुझे बहुत प्यारा है। वैसे ही आपको आपके नाम सारे प्यारे होंगे। आपको कोई गलत नाम से बुलाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, राइट? तो क्यों ना हम अपना पूरा नाम हर जगह इस्तेमाल करें। आधा नाम, nicknames, our dog's name, our wife's name, or whatever. We use our own name wherever we display ourselves, and that has to be professional. दूसरी चीज जो हमें सबसे प्यारी है, वो है हमारी अपनी शक्ल। और किसी को हम अच्छे लगते ना हो, हम खुद को बहुत पसंद करते हैं। तो हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैमरे में कैसे दिखते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। अभी आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड, अगर किसी ने नोटिस किया हो, पहले कुछ और था और अभी कुछ और है। अभी कोलकाता का एक ब्रिज है। क्यों किया मैंने ये? मैं हर बात से इस चीज को रिलेट करूंगा कि रिलेशनशिप्स आर बिल्ट विद यू चेंजिंग योरसेल्फ, ओके। तो आपको अपने इन्वेस्टर के सामने इस तरीके से पेश आना है जिस तरीके से वो चाहता है कि आप उससे पेश आएं। क्लियर? So and please take out your notebooks and pens, and we will start with the session now. If you allow, I can share my screen, please. Gautam ji. You already Yeah. co-host. You can do. Oh, yes. Great. ये हम म्यूट मोड से हम इसको हाइड कर देते हैं। हाइड वीडियो, हाइड फ्लोटिंग मीडिया कंट्रोल्स, and then we go on the bottom and we go here. Great. Okay. So आज का टॉपिक है अनलॉकिंग हिडन AUM, the silent gold mine in your existing database, whatever your client database is today. आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने भी हों, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, आप किसी भी क्लाइंट बेस पे टारगेट करते हो, HNI, अल्ट्रा HNI, रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके पास जो आज की डेट में जो डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत कुछ जो है पड़ा हुआ है, जो शायद आपको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इस मीटिंग के बाद आपका वो थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, ठीक है? सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। I just want my screen to be clear. मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, but this will help. Great. So आज मैं आपसे जो भी चीज शेयर करने वाला हूँ, वो इम्प्लीमेंट करोगे तो मजा आएगा। सुन के छोड़ दिया, एक और ट्रेनिंग के नाम पे छोड़ दिया, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सो इम्प्लीमेंटेशन इज फार मोर वर्थ देन इंफॉर्मेशन, ठीक है जी? आगे चलते हैं। तो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं करीबन 2010 से CRM इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ, विच मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैंने 10 साल salesforce.com के साथ था। उसके बाद फिर मैंने एक और कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, जो कि गुजरात बेस्ड है और वेल्थ मैनेजमेंट एप्लीकेशंस में काम करती है। सो आई स्पेशलाइज इन वेल्थ मैनेजमेंट ऑटोमेशन। IT एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हूँ टू फाइनेंशियल एडवाइजर्स,
ठीक है, मैंने एमबीए भी किया हुआ है, मैं सीआरएम स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए किया हुआ है, सो आई एम प्राउड टू से कि मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाई करी थी. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वे वी pursue our lives. I'm an army officer's son. My father is a retired army officer from the engineers. He retired as lieutenant colonel, and I am a business owner's husband. और मेरी वाइफ का एक छोटा सा ज्वेलरी और लेडी क्लच बैग्स का बिजनेस है. I am a pro on CRM. I am a pro on AI tools, and I also am a pro on building new applications. So, over a period of time, आप लोगों से जब मुलाकात पड़ेगी तो मैं आपसे कई चीजें लूंगा, और लेने के बाद मैं कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहता हूं जो आपको, आपकी फ्रेटर्निटी को बहुत ज्यादा हेल्प करे. एंड आई एम 110% श्योर आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उससे आपको बहुत सारा ईज ऑफ बिजनेस मिलेगा. ठीक है ना, और अपने क्लाइंट्स को आप बेहतर तरीके से संभाल पाओगे. ठीक है, आगे चलते हैं. सो गेटिंग द बेसिक्स राइट. So my promise is for all financial advisors who've joined the meeting for ICAA today, and those who stay till the end, I will share a list of free tools and videos on how to use these free tools and grow your AUM. जो भी मैं आज बताने जा रहा हूँ, इनके प्रॉपर वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप अगर डीप जाना चाहें, वो डीप जाकर फिर आप उन पर्टिकुलर चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कौन बढ़ाएगा AUM? कैसी रही? कौन बढ़ाएगा AUM? And please use your responses in terms of thumbs up and yes, no. थोड़ा चैट चलते रहने दीजिए. कोई आपके सवाल है वहां पे डालते रहिए. ठीक है, let's see the energy coming from you. Okay, so first story that my coach told. तो जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ना सर, मेरा जो पहला कोच था उसने एक स्टोरी बताई मुझे. वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. एक घर में एक माँ बाप और रहते थे, और एक बच्चा खेल रहा था, और एक गेस्ट आए हुए थे, और सामने पड़ा था एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा. उस पे बना था एक वर्ल्ड मैप. इस वर्ल्ड मैप को उसके फादर ने फाड़ा और जमीन पर फेंक दिया. तो बच्चा खेलने लग गया. बच्चे ने पूरे मैप को बिट बाय बिट सारा का सारा सीधा कर दिया. हर कॉन्टिनेंट, हर सी, एवरीथिंग इन ऑर्डर. और वो बच्चा था 4-5 साल का. अब सोचिए कितनी इंटेलिजेंस होगी उसमें. जब उससे पूछा गया कि बेटा, आपको तो वर्ल्ड मैप हमने सिखाया नहीं, तो आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? तो उसका जवाब था कि पापा, इस वर्ल्ड मैप के ऑपोजिट में एक आदमी बना हुआ था. इस आदमी को मैंने जोड़कर बना दिया, और वो मैप भी पूरा बन गया. क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर हम अपने आप को समेट लें तो दुनिया हमारे लिए समट जाएगी. व्हाट अ प्रोफाउंड थॉट. और इस थॉट से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था. ओके, देन अगर आप जो करते आए हैं आज तक वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है. अगर आपको अपने रिजल्ट्स चेंज करने हैं तो आपको अपने काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा. और यहां पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने काम करने के तरीके को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है तो आप मीटिंग से निकल सकते हैं. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने.
क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने काम करने के तरीके को चेंज करें. द वर्ल्ड इज नॉट द सेम एनी मोर. अनदर थॉट आई लाइक टू शेयर विद यू. मेरे वही कोच ने एक बारी मेरे से पूछा कि हरकीरत बेटा, क्या पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, उस टाइम पे 43 रुपीज अ लीटर पेट्रोल था. आप में से कई लोगों ने वो देखा होगा, उस क्या बोलते हैं, प्राइस को देखा होगा. तो उस उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा क्या आपको लगता है कि पेट्रोल महंगा है और दिक्कत की बात है? आपको क्या लगता है दिक्कत की बात है पेट्रोल महंगा हो रहा है? आपको पता है ना ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये 125 रुपए पर लीटर जाने वाला है. क्या ये दिक्कत की बात है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जीएसटी आ गया, क्या ये दिक्कत की बात है? तो मैंने बोला, सर बिल्कुल दिक्कत की बात है. मतलब मैं कैसे फुल टैंक करा के जाऊंगा और मीटिंग्स करूंगा, कैसे करूंगा? तो उन्होंने बोला, बेटा दिक्कत की बात ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, दिक्कत की बात ये है कि तुम गरीब हो रहे हो. तो तुम्हें इस गरीबी से निकलने के लिए ऐसे एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे जहां से आप एक्स्ट्रा पैसा कमा पाओ. अब इस सोच को चेंज करके देखिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या पेट्रोल महंगा है? इस मीटिंग के बाद कुछ आप ऐसा सीख जाओ जिससे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए आपके पास हर महीने, तो क्या पेट्रोल महंगा है? नहीं महंगा. हम गरीब हो रहे हैं. ठीक है ना? सो वी हैव टू इंक्रीज आवर इनकम. लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिलेशनशिप का अर्थ क्या है? संबंध का अर्थ क्या है? मेरे हिसाब से संबंध का अर्थ है जब आपके पीठ पीछे भी आपका कोई सम्मान करने लगे. बाकी सब बातें हैं सर, ऑल बुकिश नॉलेज, ऑल everybody is talking whatever. ओके, तो ये मैंने आपको चीजें बताई कि अपना डीपी ठीक करो, अपना बैकग्राउंड ठीक करो, अपना तरीका ठीक करो, अपना आप इन्वेस्टर से रिलेट करो. क्यों बोल रहा हूं? ताकि इन्वेस्टर जब आपके बारे में सोचे तो वो अच्छा सोचे. अब आप में से कोई एक मेरे एडवाइजर हैं, हरकीरत इज एन इन्वेस्टर, ठीक है? और मेरा एक कोई दोस्त है, वो मुझे बोलता है कि भाई हरकीरत भाई, नुकसान हो गया, क्रिप्टो में पैसा लगाया था, कोई इन्वेस्टमेंट की टिप दे देना यार. मैं बोलता हूँ यार, आई कांट गिव यू दैट टिप. गौतम जी इज माई फाइनेंशियल एडवाइजर. उनसे बेहतर एडवाइजरी कोई नहीं करता है. उन्होंने मेरा पैसा अच्छा रखा हुआ है और बढ़ रहा है मेरा पैसा. और मैं तुम्हें उनका नंबर देता हूँ और उनसे भी पर्सनली बात करता हूँ. और मैं गौतम जी से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ सर इस टाइम पे मेरे दोस्त को कॉल करिएगा, ये रहा उनका नंबर. अब ये क्या मैं रेफरल दे रहा हूँ? नहीं, ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. रेफरल और इंट्रोडक्शन में फर्क है. ठीक है ना? तो जब ऐसा होने लगे आपके पीठ के पीछे, लोग आपके बारे में अच्छा सोचने लगे, सम्मान करने लगे, तब जाके आपका रिलेशनशिप बनता है. रिलेशनशिप इस बात पे नहीं बनता कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या मेरे को आपकी बात समझ में आ रही है, या मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ, या आप दूसरे की कदर कर रहे हो, दूसरे की सेवा में लगे हुए हो. नहीं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है. दैट्स व्हाट रियल रिलेशनशिप इज. सो लेट्स प्रिपेयर सो यू कैन टेक मोस्ट फ्रॉम दिस सेशन. आर वी रेडी? प्लीज गेट योर पेन्स एंड पेपर्स रेडी फॉर सम नोट्स. अगर अभी तक नहीं आप लेके आए हैं, इफ यू डोंट राइट डाउन एनीथिंग यू विल नॉट टेक एनी एक्शन. ओके, वी विल नॉट बी शेयरिंग अ मीटिंग रिकॉर्डिंग. ओके, we will wait for 1 minute. Please grab your pens and papers. There's a lot to learn, and I'm sure you will only have your questions ready जब आपके पास अपने नोट्स तैयार होंगे.
और पेपर पे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ग्रेट, आगे चलते हैं। I hope can you just give me a thumbs up, everyone who has got a pen and a paper handy? Anyone? Any thumbs ups? You know how to use Zoom? Zoom पहले इस्तेमाल किया है, नीचे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस में थम्स अप होता है। थम्स अप प्लीज दीजिए मुझे अगर आपके पास है पेपर पेन तैयार। नहीं तो गाइस मेरा ना मीटिंग करने का कोई पर्पस नहीं है अगर आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से। गौतम जी, आई होप आई एम बीइंग वेरी straightforward and clear, and my expectations are okay. Yes, absolutely correct. हाँ जी, please everybody thumbs up and tell me whether you have the pen and paper ready. Sir, chat is disabled. Please enable it. Please enable the chat. Some people are doing. Because I will proceed. You will not learn. आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। फिर आप बोलेंगे, आप मुझे कॉल करेंगे कि भाई मैं आपको इन फ्री टूल्स के बारे में आपको कुछ बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगा। There is nothing called free in the world. Free is the session. Please make the best use of it. गौतम जी का इनिशिएटिव है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव स्पोकन विद हिम, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए। प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ओके, लेट्स प्रोसीड। ओके, लेट्स प्रोसीड। सो हियर द डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एन एमएफडी एंड आई डू नॉट हैव एन एआरएन। ओके, सो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके AUM को तोड़ के अपना बनाना या आपके क्लाइंट को अपना क्लाइंट बनाना। मुझे इंटरेस्ट जरूर है कि आप मेरे फ्यूचर में क्लाइंट बने, लेकिन वो ठीक है। आई विल फर्स्ट, पहले मैं आपकी सेवा करूंगा, उसके बाद आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखूंगा, ठीक है सर? सो माई प्रॉमिस इज दैट आई विल नॉट सेल एनीथिंग टू यू टुडे। मैं कुछ भी आपको नहीं बेचूंगा, okay? And I will not tell you anything which is not in your interest. So please make notes, okay? So how will we proceed? I ask you a question, you write down the answer on that piece of paper, and at the end of the meeting you have to send that picture of this paper with us on WhatsApp number. आपको WhatsApp number दे देंगे, आप अपने notes का picture लेके मुझे WhatsApp number पे share करेंगे। उसी से पता चलेगा कि आपने अच्छे से एंगेज किया है, नहीं किया है, और आपने यहाँ से कुछ सीखा नहीं सीखा है। और जो लोग इसको नहीं कर सकते, प्लीज डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग क्वेश्चंस टू पीपल हु डू नॉट हैव द एबिलिटी टू टेक नोट्स एंड डू एज आई सेड। प्लीज डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, ओके? Happy to answer any questions from someone who can share this with me. So write your names and today's date on the top. Today's date is 30th of May 2026. Please write your names and date on the top. Let's begin. So what products do you have currently? On that piece of paper, write down what products do you have right now? Mutual fund, AIF, PMS, NSE, bonds, FD, loans against mutual fund, इंश्योरेंस। मुझे पता है आप लोगों में से काफी सारे लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स करते हैं, बट एक डायरेक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो प्लीज राइट दैट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आई एम मूविंग अहेड। सो वेयर इज योर फोकस राइट नाउ? क्या आप अपने क्लाइंट्स को रिटेन करना चाहते हैं? क्या आप नया बिजनेस, नए क्लाइंट्स लाना चाहते हैं?
क्या आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का AUM बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने स्टक AUM को अनलॉक करना चाहते हैं, या जो AUM आपका लीकेज हो रहा है उस लीकेज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, लाइक रिडेम्पशन, या अगर रिडेम्पशन हो रहा है तो फिर उस रिडेम्पशन को वापस लाना चाहते हैं? वेयर इज योर फोकस? ऑन अ पीस ऑफ पेपर प्लीज राइट डाउन फोकस, और अपना आंसर वहां पे चाहे शॉर्ट में लिख दीजिए, और अपनी लैंग्वेज बंगाली में लिख सकते हैं, बंगाली में लिखिए, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। मेरे पास सारे टूल्स हैं, मैं सब ट्रांसक्राइब कर लूंगा, मुझे सब आता है। आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की लैंग्वेज नहीं समझ सकता, और अगर नहीं समझ सकता उसे कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग टू लर्न। व्हाट इज योर गोल फॉर योर AUM? आपका गोल अमाउंट कितना है पहले साल का? एज एन अभी हम मई में बैठे, एंड ऑफ मई विच इज स्टार्टिंग ऑफ जून, तो आप अगले जून तक कितना करना चाहते हैं, 3 साल में कितना करना चाहते हैं, और 5 साल में कितना AUM करना चाहते हैं? थोड़े अपने फिगर्स को रियलिस्टिक रखिएगा, लेकिन ऐसे रखिएगा जो फिगर्स के आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हों। ठीक है ना? तो आपकी इनकम जो भी है, आपकी कमीशन जो भी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यस, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज आपकी फ्यूचर की ग्रोथ कितनी है। ठीक है, प्लीज राइट गोल and write down your 1-year goal, 3-year goal, and 5-year goal. Okay. Next, have you lost your clients to direct business? आप लोगों ने क्या अपना जो एडवाइजरी से जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो डायरेक्ट में भी गए हैं? क्या उन्होंने जीरोदा, धन ग्रो ऐसे एप्स यूज करके इन्वेस्टमेंट करी है इन स्पाइट ऑफ हैविंग you as their investment advisor? Yes or no? So direct, yes, no. Please write that down on a piece of paper. Now let's start thinking deep. Now that's where you can learn. Let's not focus our entire thought on AUM. मतलब पैसे के ऊपर अपना ध्यान हटाइए, अब एक इन्वेस्टर के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। एक 28 से 32 साल के उम्र के व्यक्ति को क्या क्या चाहिए, किस किस बेसिस पे आप उनको एडवाइजरी दे सकते? अच्छा, एम्फी बोलता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर तक नहीं बोल सकते। वो क्यों? क्योंकि आप इंसिडेंटल एडवाइस देते हो, और इंसिडेंटल एडवाइस ही दे सकते हो। इंसिडेंटल एडवाइस क्या है? ये आपके गोल्स हैं, ये आपके लाइफ प्लान्स हैं, या आपके किसी को जनरेशनल वेल्थ चाहिए, किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को बच्चों का एजुकेशन करना है, किसी को बेहतर घर चाहिए, तो इन सब चीजों के ऊपर आप एडवाइजरी कर सकते हो। तो 28 से 32 की उम्र के लोगों को क्या चाहिए? कैन somebody tell me, anybody who can open up your mic, let's this be interactive. 28 to 32 की एज ग्रुप में ऐसा क्या हो रहा होता है जिसके बेसिस पे आप एडवाइजरी करते हो? एनीबडी? घर परचेज के लिए। हाँ जी, होम होम परचेज, वेरी गुड। व्हाट एल्स? रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग, बहुत जल्दी याद आ गया। ठीक है, मतलब ये जवान लोग हैं, इनको याद। अच्छा, आगे और कुछ? उस टाइम उसका मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट होता है, मैरिज के फैमिली लिए, प्लानिंग का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फॉरेन वेकेशन, फ्लैट, न्यू कार, टू व्हीलर और फोर व्हीलर मे बी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं फॉरेन लोग। वेकेशन के लिए जाना है। will take future loan, that's planning is required. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हनीमून के लिए जा रहे हैं। 28 to 32 की एज ग्रुप के अंदर जॉब प्रमोशंस भी होती हैं, जॉब से निकाला भी जाता है, बोनसेस भी मिलते हैं, इंक्रीमेंट्स भी होती हैं, प्रमोशंस भी होती हैं। तो ये एज ग्रुप है ना, बहुत वो है, मतलब
एक ऐसी एज ग्रुप है जहाँ पे आप अलग अलग चीजों के लिए उनको रीच आउट कर सकते हो। अब यही चीज आप अगर मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ और 70 साल का व्यक्ति हूँ, तो आप क्या मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग का मैसेज भेजोगे अगर मान लो 70 साल के व्यक्ति को, तो मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगा क्या? अगर करूंगा तो क्या रीजन आपको लगता है मैं आपको ब्लॉक ना करूं, है ना? तो आपको नो नीड सही फॉर योर मैसेज रिटायरमेंट प्लानिंग। सही व्यक्ति को भेजना है आपने, ठीक है ना? रिस्क प्रोफाइल, अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, कैसा रिस्क प्रोफाइल है? एमफी की गाइडलाइन है, ये मेरी नहीं है। एमफी गाइडलाइन बोलती है कि आपको हर किसी कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करके रखना है, उसके साथ कॉन्वर्सेशनल लॉग्स मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है ना? तो आपको ये सब रखना पड़ेगा। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको एक जगह ये भी रिकॉर्ड करके रखना है कि क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आउटसाइड योर एआरएन कितनी है। आई होप दैट इज क्लियर। उनकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एनी ब्रोकिंग, डायरेक्ट ब्रोकिंग, शेयर ट्रेडिंग दैट दे डू, या उनका किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कोई एयूएम बना हुआ है, आप एक एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जस्ट फॉर द रिलेशनशिप सेक या जस्ट फॉर फैमिली सेक, ठीक है? तो आउटसाइड योर क्लाइंट एआरएन क्लाइंट की कितनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो इन चीजों को आपने आपने रेगुलर बेसिस पे देखना है और अपने पास रिकॉर्ड रखना है। सो द ग्रो व्हाट इज द ग्रोथ डिलेमा? एक अचंभे की बात क्या है? अचंभे की बात यह है कि आप अभी राइट पे देखिएगा पहले, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ क्लाइंट ट्रस्ट के ऊपर खेल रहे हो और कोल्ड लीड्स के ऊपर हंटिंग कर रहे हो। अगर कोल्ड लीड्स नहीं कर हंटिंग कर रहे तो रेफरल्स के ऊपर खेल रहे हो कि भाई रेफरल कभी आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ठीक है। कोई सिस्टम नहीं बनाया, कोई प्रोसेस नहीं बनाया, मार्केटिंग में खर्चा नहीं कर रहे, ये बोल के एमफी मना करता है कि भाई मार्केटिंग ना करो। एमफी मार्केटिंग के लिए मना करता है लेकिन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए तो मना नहीं करता है, वो तो बोलता है करो, ठीक है? तो अगर कोई एएमसी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है या आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन उसको मैनेज करिए ढंग से, ठीक है? और अगर आप सही में बढ़ना चाहते हो तो आपको उस जगह डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा जहां पे कस्टमर का अनएलोकेटेड कैश या डोरमेंट अकाउंट्स पड़े हुए हैं आप ही के इकोसिस्टम में, आप ही के सामने, लेकिन ना कस्टमर वो पैसा उठा रहा है ना आप वो पैसा उठा रहे हो। ये आपको कहां कहां मिलेगा अभी हम उसकी बात करें, ठीक है? तो व्हाट इज हिडन एयूएम? हिडन एयूएम इज लिक्विड, accessible and maturing capital that your clients already own but have not deployed through your distribution platform or through your AUN, ARN, your ARN, जैसे कि maturing FDs, corporate bonuses, कोई प्रॉपर्टी लिक्विडेट हुई है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लिक्विडेशन हुआ है, कोई प्रॉपर्टी मर्जर हुआ है। एक राजेश जी का केस स्टडी लेते हैं। एक आपके क्लाइंट है राजेश, जिनका कि 15 लाख का एफडी मैच्योर हो रहा है अगले महीने। अब क्योंकि आपने एक डिजिटल टच पॉइंट या रिमाइंडर इस्टेब्लिश नहीं किया है और आपने नोट्स में ही लिखा हुआ है, वो डायरी आप भूल जाते हैं, डायरी कहीं पे रखी रह जाती है और कोई अलर्ट नहीं आता, कोई रिमाइंडर नहीं आता, आप कॉल नहीं करते, तो वो 15 लाख जब मैच्योर हुआ तो उन्होंने खर्च दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया। देखो, आप नहीं कॉल करोगे तो कोई और तो कॉल करेगा, और जो कॉल करेगा उसके पास वो पैसा चले जाएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? सो द कैश विल साइलेंटली रोल इनटू
or the cash will silently roll into a basic savings account which is earning 3% or 4%. Okay, even when you knew the FD was maturing, you never set up a trigger to intervene, and that's your lost AUM. ओके, वो आपका AUM लॉस्ट है। तो आपको इन चीजों से को ध्यान रखना है, और मैं आज आपको पूरा सिस्टम बताने वाला हूं जिससे आप इन चीजों को ध्यान रखने वाले हो। और अगेन, कोई चीज पेड नहीं है आज, कोई सिस्टम में आपको जो बताने वाला वो पेड नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विडिटी रेडार देखते हैं हम लोग। प्रेडिक्टेबल कैपिटल कहाँ कहाँ पड़ा हो सकता है, प्लीज मेक नोट्स, ठीक है। आपको आइडियाज भी मिलेंगे, आप आइडियाज जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैच्योरिंग एफडीज के बारे में हमने बात करा, और आइडल सेविंग्स होती हैं, ठीक है। लो यील्डिंग रिटेल बैंक डिपॉजिट्स में कई सारे डिपॉजिट्स जो हैं वो सड़ रहे होते हैं या इंटरेस्ट गेन नहीं कर रहे होते हैं, और जो इन्फ्लेशन है उतना भी कवर अप नहीं करते हैं। तो इट इज दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बट अ लॉट ऑफ पीपल अमंगस्ट अस कीप थिंकिंग अबाउट इट, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। एक्शन करने के लिए आपको टास्क डालना पड़ेगा अपने सिस्टम में कि कब किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, क्या रिकॉर्डिंग करनी है, क्या समरी लेनी है, ठीक है। इंश्योरेंस पे आउट्स, एंडोमेंट प्लान होते हैं लोगों के पास, हो सकता है आपके साथ हो सकता है किसी और के साथ, ये आपके डिस्कवरी के अंदर कई बार आप लेते हैं। तो एंडोमेंट प्लान की जो एस्टिमेटेड जो एक्सपायरी है और रिडेम्पशन जब आना है, उसका एक आपको जो टास्क रिमाइंडर है जरूर लगाना है, ठीक है। जब पॉलिसी कोई सरेंडर करता है, आपको पता चलता है, अगर आपका इन्वेस्टर आपसे बात कर रहा है या आपने कोई पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करी, उसके बीच में आपको डिस्कशन में ये चीज समझ में आती है, तो उसका आपने टास्क लगाना है, ठीक है ना, कि कब हो रहा है ये, और उसके बारे में फिर आगे जाके बात करनी है। डोंट टॉक अबाउट द मनी, talk about the safety of their money, okay, talk about their good, okay। तो corporate FDs, corporate bonuses, periodic windfalls होती हैं जो कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स को एनुअली हिट करती है, ठीक है ना। कई कंपनीज में जो हैं ESOPs होते हैं, employee stock ownership plans. I'm not too sure if anyone is aware of this. So companies like Oyo, companies like NSE, companies who are startups and जो प्री IPO में जो कंपनीज होती हैं, उनके कई सारी कंपनीज में एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान होते हैं, और कंपनी उनको इक्विटी देती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और वो इक्विटी इमीडिएट लिक्विड कैश की तरह अवेलेबल रहती है। जिसको नहीं पता था उसके लिए न्यूज है, जिसको पता था उसके लिए ग्रेट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी क्वार्टर, एवरी 6 months, एवरी 1 year, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, उनका जो ESOP है वो उनको मिलता है, एम्प्लॉयज को मिलता है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो तो वो आपको इंश्योर करना है। ये कंपनीज की इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, AI के थ्रू भी मिल जाएगी। आप अगर अपने क्लाइंट्स का एम्प्लॉयर का डिटेल रखते हैं अपने सिस्टम में, अपने CRM में, अपनी शीट्स के अंदर, तो आप ये चीजें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देन रियल एस्टेट एग्जिट्स, हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो रही हैं जहाँ पे टैक्स आप you as an advisor you are to advise on tax efficient deployment of their money, right? So help them. अगर कोई आपको बोलता, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है। तो लेट्स से मैं आपका इन्वेस्टर हूं, आप मेरे एडवाइजर हैं, ठीक है। और अपने माइंड में बिल्कुल ये सिचुएशन को रख के चलिएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है। मैंने आपको बोला, गौतम जी मैं ना एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा करीबन 20 लाख रुपए आपके पास है, मैं 10 लाख रुपए चाह रहा हूं कि आप निकलवाएं, मेरा पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं,
10 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो अब आप एज अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर यूजुअली क्या बोलेंगे कि सर आपका पैसा है, आप जब चाहे निकालें। दैट्स बीइंग अ गुड एडवाइजर, राइट? एवरीबडी थिंक्स सो। बट इस 10 लाख को निकालने के बाद सवाल ये है कि ये 10 लाख वापस कैसे आएगा। इस एग्जाम्पल को दोहराऊंगा नहीं, ध्यान रखिए इस एग्जाम्पल के ऊपर ही आपने जवाब देना है। एनीबडी हु वांट्स टू अनम्यूट एंड टेल मी हाउ विल यू गेट बैक दिस 10 लाख रुपीस? एनीबडी? कम अगेन, कम अगेन, बताइए दोबारा एक बारी अनम्यूट करके। ये 10 लाख रुपए वापस कैसे आएगा? सर उसको हम रियल एस्टेट का रियल एस्टेट के बदले एसडब्ल्यूपी समझा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? रियल एस्टेट के बदले एसडब्ल्यूपी मतलब एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, उससे आपको हर महीना रेंट मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। अच्छा, ओके, उसमें क्या होगा? हर महीना उसको कुछ पैसा हम देंगे, मतलब अगर 10 लाख रुपया अगर जमा कर रहे हैं तो साल का 8% के हिसाब से मंथली कुछ पैसा देंगे। उसमें हम आप तो बताएंगे कि पैसा लेने की बात कर रहे हो, वो पैसा निकालने की बात कर रहा है। नहीं, वो पैसा को फिर हम वापस आने की ही बात कर रहे हैं। उसको अच्छा, बोलेंगे कि आप इससे पैसा हर महीना ले सकते हैं, ओके, हम दे ओके, सकते हैं हर महीना ले सकते हैं। कैसे? एसडब्ल्यूपी के रूप में। म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन दे देंगे, क्योंकि उसमें पता होगा ये उसका लोन है, तो लोन को उसको चुकाना पड़ेगा। ओके, ओके, एनीबडी एल्स? तो पैसा उठाने के बाद उसको एसआईपी कर सकते हैं रिकवरी के लिए। मेरे को पहला जवाब बड़ा पसंद आया था, लेकिन पहले जवाब में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है तो एक चीज होती है कॉल्ड अश्योर्ड रिटर्न्स या रेंटल इनकम। वो रेंटल इनकम नॉर्मली 3-4 महीने के बाद स्टार्ट होती है फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उस समय आपको क्लाइंट से ये पूछना है कि सर ये जो अश्योर्ड रेंटल आपके पास आ रहा है उसका डिप्लॉयमेंट आप कैसे करना चाह रहे हो? आपको पैसे की जरूरत है, आप खर्चा करना चाह रहे हो, या कोई और चीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या मैं आपको एक प्लान बना के दूं जिससे आपका ये जो अ, अ, पैसा है उसी पैसे से आप अपने लोन को चुका पाओ, कुछ ऐसा बना के मैं आपको प्लान पेश करूं। ठीक है? तो और ये जो कॉल है ना, अगेन आप करोगे तो ये आपका, कोई और करेगा तो वो उसका। और ये कॉल उसी टाइम नहीं होती है, उसी टाइम नहीं बात होती है। ये बात होती है 3 महीने 4 महीने बाद। ठीक है? जब उसका अश्योर्ड रिटर्न आना शुरू होता है तो उस टाइम पे आपको टास्क लगानी है। ठीक है? आपको अलर्ट आना चाहिए कि इनसे बात करनी है। क्लियर? तो फ्रिक्शन पॉइंट वार्निंग इज कि व्हेन अर्जुन startup vests 30 lakhs in ESOPs or his family transfers 50 lakhs from a land sale, they do not automatically call their FD. Or when they receive assured returns, they don't automatically call their MFD. Without proactive communication, this flows into standard offshore blocks or default bank setups, और जो कि आपकी नजर से परे हो गया, आपके एक्शन से परे हो गया, और वो पैसा आपके पास कभी नहीं आया। और हम सोच रहे हैं जीएसटी बढ़ गया तो हमारा पैसा कट गया। कटा जरूर है, इट्स खराब हुआ है जो हुआ है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं कि हम उसी को ड्वेल करते रहें। हमारा सोल्यूशन ये है कि हम नया यूएम कहां से लेके आए। लीगेसी एंड इनहेरिटेंस वेल्थ, इंटरजेनरेशनल एसेट। बंदा बोलता है, लेट्स से एज ग्रुप मेरी है, मैं 46 इयर्स का हूं। ठीक है? आप 50 इयर्स के होंगे या 40 इयर्स के होंगे, या जो भी आपकी उम्र है।
इस उम्र पे आते आते आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो जो है उसकी थोड़ी लिक्विडेशन चालू हो जाती है, राइट? वो जो है, हेलो, या यू सेइंग समथिंग? सो वो जो पैसा है वो बनना शुरू हो जाता है, और मैं उसको या तो उड़ाना शुरू कर दूंगा या मैं उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी एडवाइजरी कैसी है, आपकी मीटिंग्स कैसी हैं, आप अपने आप को कैसे प्रोफेशनली प्रेजेंट कर रहे हो, तभी वो क्लाइंट आपको कुछ बताएगा। और जो वो बता रहा है वो आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, वो आप एआई से कैसे उसकी हेल्प ले रहे हो उससे डिपेंड करेगा कि हम कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर पाए। एक बड़ी अच्छी बात मुझे समझ में आई, और आई एम श्योर एवरीबडी विल अग्री ऑल्सो। सो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरा खुद का। मैंने करीबन 18 साल अपनी करियर में नौकरी करी है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उस नौकरी के दौरान करीबन 12 साल जो है मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रहा जो टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉर्पोरेट। अब वो इंडिया में नहीं है, इंडिया से चली गई हैं, और मैं वहां पे मेरा पीएफ कटता था। अब वो पीएफ कटता था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता था, वो मैंने आज तक नहीं निकाला, ठीक है। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, मेरे कई सारे जो पीएफ अकाउंट्स थे जो अलग अलग कंपनियों में मैंने काम किया, वो इनऑपरेटिव हो गए, इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट, ठीक है जी। अब वो इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट मेरे को किसी लॉगिन पे तो दिखता नहीं है, उसका यूएएन भी नहीं है, ठीक है। तो वो इनऑपरेटिव पीएफ, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में करीबन 3,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है। और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो पहले काम किया था, उन्होंने पीएफ आया था और अब नहीं आता। वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है? इज इट, एम आई ऑडिबल? गौतम जी, एम आई ऑडिबल? नहीं सर, बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं। Yes, sir, you are audible. Okay, can you please place yourself on a mute? Everybody place yourself on a mute. Please muted all. Okay, great, great. आगे चलते, ठीक है। सो जो आपका इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट है, कोई मुझे बताना चाहेगा इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट का गवर्नमेंट का नेक्स्ट इनिशिएटिव का नाम क्या है? एनीबडी कैन क्विकली टेल मी, डोंट रिसर्च ऑनलाइन, क्विकली टेल मी अगर आपको पता है। किसी को नहीं पता है? देखिए, किसी को नहीं पता है। सर फिर से बताइए सर, क्या? इनऑपरेटिव प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स जिनका यूएएन नहीं है, जहां पर लाखों रुपया पड़ा हुआ है, वो पैसा एक व्यक्ति कैसे निकालेगा, इसके लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव का नाम क्या है? संपद पोर्टल। सॉरी, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? इट्स कॉल्ड ई मित्र। मैं आपको पूरी वीडियो भेजूंगा इसके ऊपर, जिसको चाहिए वो अपना थम्स अप करे। एनीबडी हु वांट्स टू लर्न अबाउट दिस, मोर अबाउट दिस, एंड यू रियली थिंक कि भाई इस पैसे को म्यूचुअल फंड में रखा तो ज्यादा बेहतर होगा, great, I will add that video in the toolkit that I will give you at the end of the meeting. आगे चलते हैं। सो आपको क्या क्या चीजें करनी है वो बताता हूं मैं, ठीक है। अब हमारी बात होगी हिडन एयूएम कहाँ पे, आपकी सोच अभी थोड़ी बदल रही है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि आप इनबाउंड जो एयूएम है वो कैसे ला सकते हैं और कैसे
इंश्योर कर सकते हैं कि आप हमेशा इन्वेस्टर के लिए एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर नजर आए। पहला स्टेप है ट्रू कॉलर में अपने आप को रजिस्टर करें। ये देखें कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका नाम क्या आता है, क्या फ्रॉड आता है या डीएनडी फ्रॉड आता है या चिपकू आता है या कुछ भी आता है। तो उसको ठीक करने का एक तरीका है ट्रू कॉलर के ऊपर, जो मैं अपने टूल किट में शेयर करूंगा। कितने लोगों को वो तरीका समझना है कि भाई ट्रू कॉलर पे आपका नाम स्पैम कॉलर ना आके आप ही का नाम आए? कितने लोगों को वो तरीका समझना है? राइट मी इन द चैट बॉट, राइट मी इन द चैट बॉट। सर साइबर स्पेशलिस्ट बोलता है कि ट्रू कॉलर मोबाइल में सेव नहीं करना चाहिए, उसमें से फ्रॉड होता है। लेकिन आप जो सर बोल हर रहे हैं आज की डेट में हर चीज का तरीका है, देयर इज अ टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग। एंड मैं बैठा हूं ना यहाँ पे सर, मैं आपको वो हर टूल दूंगा, वो हर तरीका दूंगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। डोंट लिमिट योर माइंड, डोंट लिमिट योर ग्रोथ। दुनिया ट्रू कॉलर यूज कर रही है, आप क्यों नहीं यूज कर रहे? आप अगर ट्रू कॉलर नहीं यूज करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अपने ट्रू कॉलर में आपके नंबर को मार्क नहीं कर सकता। ओके, सो लेट्स यूज दिस। कॉलर में पेड वर्जन ठीक है। ठीक है ना? सो नेक्स्ट इज प्लीज राइट योर क्वेश्चंस डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. I will take the questions in my feedback form at the end of the session. Okay? जल्दी बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप बिजनेस में आपने अपग्रेड करना है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एज एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफेशनल बायो में लिखना है। आपको अपने ऑपरेशनल आवर्स डालने हैं, अपने सर्विसेज क्या क्या हैं आपके, वो लिस्ट ऑफ सर्विसेज देनी है। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने अपने टूल किट में दिया हुआ है, आप जरूर उसको देखिएगा। जिस किसी ने अभी तक पर्सनल व्हाट्सएप रखा हुआ है वो प्लीज बिजनेस में अपग्रेड करें, और अपग्रेड करने के बाद अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनली सेटअप करें। कैसे करना है वो उसका वीडियो मैंने अपने टूल किट में दिया हुआ है। एक मीटिंग में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें एंड टू एंड डेमो दे के बता दूं, बट मैं कुछ चीजों का डेमो दिखाऊंगा जरूर। एम्फी कंप्लायंट ईमेल सिग्नेचर, आपके गूगल जीमेल आप लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोग जो भी सोलो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं स्पेशली वो लोग यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं। जीमेल के ऊपर आप क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर कैसे बनाओगे, वो भी एम्फी कंप्लायंट कैसे बनाओगे, उसकी डिटेल्स भी मैं टूल किट में दूंगा। आप जरूर उस वीडियो को देखें, उस पीडीएफ को पढ़ें। एम्फी का पीडीएफ है, उसके अंदर गाइडलाइंस देखें और अपना सिग्नेचर को अच्छे से चेंज करें। ठीक है, आपका पूरा नाम, आपका कॉर्पोरेट लोगो, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स जहां जहां पे भी आप हैं उसके लिंक्स, वो सब आना चाहिए है। तो उसका एक वीडियो मैंने वहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट है, जब गूगल माई बिजनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई सर्च करता है बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नियर मी या बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नियर मी या हाउ टू इन्वेस्ट माय, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट नियर मी, या इस तरीके से कोई अगर लोकल हाई इंटेंट इन्वेस्टर सर्च कर रहा है तो आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कैसा दिखना चाहिए? आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर सर्विस कैटलॉग पूरा होना चाहिए, जिसके अंदर एसआईपी सेटअप, गोल बेस्ड प्लानिंग, एनआरआई पोर्टफोलियो हैंडलिंग या जो जो आप कराते हैं उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए, ताकि आपका बिजनेस सामने नजर आए। आपको जान के हैरानी होगी कि कई लोगों को जिन्होंने गूगल माई बिजनेस ठीक से नहीं यूज किया, आप गूगल माई बिजनेस में अपने पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, गूगल माई बिजनेस भी आपको पोस्ट देता है, लेकिन यहाँ के पोस्ट में आपको एडवांटेज ये मिलती है
कि आपके रिजल्ट्स एआई बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है। गूगल माय बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो एआई पे सर्च करने पे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जैसे आपने 50 करोड़ क्रॉस किया, 100 करोड़ क्रॉस किया, वो अचीवमेंट्स की पोस्ट डालिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हरे रामा हरे कृष्णा, ईद मुबारक, ये सब डालना बंद कर दीजिए। आज तक मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जिसने हैप्पी दिवाली के मैसेज पर अपना AUM बढ़ाया हो। People are not interested in your wishes, people are interested in your care. How will you care for them? How will you make sure their world of finance is better? उसके बारे में गूगल पोस्ट करिए, ठीक है। फिर और आप उसकी नेटिव मैसेजिंग कैपेबिलिटीज यूज करें। हर कोई मेरे से कई लोग पूछते हैं कि सर व्हाट्सएप बिजनेस में कोई फ्री तरीका बताइए जिससे ऑटोमेटिक मेरा रिस्पांस चला जाए, कस्टमर से डायरेक्शन मिल जाए, कस्टमर ऑप्शंस चूज कर ले और मेरे लिए टास्क बन जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी चीजें फ्री नहीं आती हैं। फ्री में जो है वो यूज करो। फ्री में है नेटिव मैसेजिंग कैपेबिलिटी ऑफ गूगल माय बिजनेस। तो आपको अगर कोई टेक्स्ट करता है डू यू ऑफर SIPs, आप रिप्लाई करिए यस वी डू, वुड यू लाइक टू नो मोर, और चैट करिए। गूगल आपकी रैंकिंग बढ़ाता है जब आप लोगों की चैट को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हो। अब ये तीनों चीजें कैसे करनी है इसकी भी वीडियो मैंने अपने टूल किट में डाली हुई है। करना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन इज फार मोर देन इंफॉर्मेशन। आज आप लेके चले गए, अपनी कोई चीज नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई फायदा नहीं। रिव्यू जनरेशन इंजन, गूगल का बहुत अच्छा रिव्यू जनरेशन इंजन है। उसके अंदर आप एक सिंगल 1 क्लिक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर सकते हो अपने रिव्यूज के लिए, जो आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो। और कस्टमर्स को फिल्टर कैसे करना है, क्या कैसे करना है, हम आगे बताएंगे, ठीक है। आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो कैलेंडर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कैलेंडली का नाम सुना होगा, कैलेंडली इज अ पेड एप्लीकेशन। वैसा ही एक एप्लीकेशन है Zcal, लिख लीजिए zcal.co करके उनकी वेबसाइट है। इसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है टूल किट में, ये सारी चीजों का वीडियो दिया हुआ है, देखिएगा जरूर। और इस टूल से आप अपने इन्वेस्टर से अपना कैलेंडर को शेड्यूल करा सकते हैं और अपने पास इसको ओवर गूगल कैलेंडर ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। इसका एक वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वो भी आपको शेयर होगा। देन आपका जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसके अंदर बहुत सारे तरीके के ऑफ आवर कैप्चर टूल्स अवेलेबल हैं। आप अवेलेबल नहीं है तो क्या रिस्पॉन्स जाए, आप 24 घंटे में क्या रिस्पॉन्स जाए, आप कोई ये गुजारिश है मेरी कि आप अपने ब्रोशर्स और अपने फोन नंबर्स, अपने ईमेल आईडीज कृपया अपने रिस्पॉन्सेज में ना शेयर करें। दिस इज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। मैं देखता हूँ कई लोग लंबे लंबे रिस्पॉन्सेज दे देते हैं। एवरी टाइम आई मैसेज देम, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू अस, आर बिजनेसेस इन कोलकाता, फलाना 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 फलाना। Nobody is interested in your messages every single time they message you. So please remove those messages. तरीके से मैसेजेस सेटअप करें, और ये तरीके कैसे यूज करने हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो रखा हुआ है अपने टूल किट के अंदर। नाउ लेट्स लुक एट समथिंग न्यू फॉर सम एंड नॉट न्यू फॉर मेनी। आपके यहाँ आप इस मेंबर्स के ग्रुप में कई लोगों ने contacts.google.com सुना होगा, कईयों ने देखा होगा, लेकिन कई लोगों ने उसको एक एज एन एफिशिएंट CRM, फ्री CRM की नजर से नहीं देखा होगा। तो तरीका बता रहा हूं आपको, देखिए, एंजॉय करिए। आपके कस्टमर्स कैसे बढ़िया तरीके से मैनेज हो सकते हैं आज आप सीखेंगे, ठीक है, फ्री में। दिस इज अ फ्री CRM, ओके।
Can you repeat again? सो अपनी कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट डेटाबेस है, कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, कस्टमर का जो AUM है, और जो मैंने आपको अभी चीजें बताई, क्या उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, या क्या उनके पास इनऑपरेटिव PF है या नहीं है, या उनके पास कोई एडिशनल रेंटल आ रहा है नहीं है आ रहा है, क्या उनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है नहीं है, जो आप डायरी में लिख लेते हो, उसको ऑनलाइन कैसे लॉगिंग करनी है और उसको यूज कैसे करना है, मैं वो बता रहा हूं। सीखना चाहेंगे? Yes. ग्रेट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू गूगल माय बिजनेस, सॉरी गूगल माय बिजनेस बोल रहा हूं, ऑन माय ब्राउजर। लेट मी गो टू contacts.google.com. okay, so everyone, if everybody has seen the screen, great. If you have not seen this screen, ये URL है contacts.google.com का। 1 सेकेंड, इसको मैं ना ये मैं हाइड कंट्रोल पैनल कर रहा हूँ तो वो हाइड ही नहीं हो रहा। ग्रेट। सो contacts.google.com आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउजर दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसे आएंगे आप, और यहाँ पे आपको अपने सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब आपको प्रोसेस क्या यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल गौतम। ओके, कोई भी एक नाम सर्च करेंगे, मैंने सर्च किया गौतम करमाकर। ओके, नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट what I have to do is I have to press the edit button. I have to make sure I have the name, I have the company name correct in the right place, इस तरीके से, ठीक है। And I need to have let's say the title, founder, then the email ID. If you have additional email IDs, you can add email here and write an additional email ID also. You can add the phone numbers, you can add more phone numbers if you have other phone numbers also. और इनकी ही फैमिली में कोई और व्यक्ति है जिनका फोन नंबर आपने ऐड करना है, कोई बच्चा है, कोई वाइफ है, तो आप यहाँ पर उनका फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस ऐड कर लीजिए, वेबसाइट एड्रेस ऐड, जैसे मैंने ICAAindia.org किया हुआ है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, इसका भी मैं आपको पर्पस बताऊंगा क्यों आप ऐड करेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल, इसके अंदर भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका ये नोट सेक्शन है, यहाँ पे आप इस क्लाइंट के ऊपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब लॉजिक ये कहता है कि आपको क्लाइंट के ऊपर बहुत सारी और डिटेल्स मेंटेन करनी है, ठीक है। तो आप जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बैकएंड में, चाहे वो फिंसो है, एडवाइजर खोज है, इन्वेस्टवेल है, आपका मिडास एक्स है, या आपको कोई रिकमेंडेशंस चाहिए पेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के, वो आप मेरे से रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक एक्सपोर्ट ऑल क्लाइंट्स का एक बटन होता है, जहां पे आपके क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्प्रेडशीट के ऊपर एक्सपोर्ट हो जाती है। आपने क्या करना है, उस स्प्रेडशीट को एक्सपोर्ट करना है, और स्प्रेडशीट के कॉलम्स जो भी आ रहे हैं, जो भी कॉलम्स आ रहे हैं, उन कॉलम्स को आपने एज एन एडिशनल फील्ड ऐड करना है, ठीक है। तो व्हेन आई डू शो मोर, देन आई गेट टू ऐड कस्टम फील्ड। ये एक बार का काम करना है आप, ठीक है। ऐड कस्टम फील्ड में मैंने मान लीजिए डाला पैन नंबर, लेबल, ठीक है। और ऐड कस्टम फील्ड मैंने क्या कर दिया, और क्या होता है, क्लाइंट आईडी, ठीक है। जो भी आपके कस्टम फील्ड्स हैं
AUM या SIP बुक, ठीक है। जो भी आपके कस्टम फील्ड्स हैं वो आपने सारी की सारी ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद आपने कर दिया सेव, ठीक है जी। एंटर ए लेबल, यहाँ पे लिख देंगे पैन, यहाँ पे लिख देंगे भाई सेम क्लाइंट आईडी, यहाँ पे लिख देंगे SIP बुक, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे सेव। जैसे ही सेव किया आप उस कॉन्टैक्ट पे वापस पहुंचे। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, आपने एक्सपोर्ट दबाना है, और एक्सपोर्ट दबा के गूगल CSV को एक्सपोर्ट कर। जैसे ही गूगल CSV को एक्सपोर्ट करेंगे आपके पास एक CSV फाइल आ जाएगी, उसके अंदर जितनी भी आपने फील्ड्स डाली हैं उसके कॉलम बन के आ जाएंगे। इन फील्ड्स को उसी ऑर्डर में डालना है जिस ऑर्डर में आपका जो एडवाइजरी खोज से या जो भी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट निकाला है वो आपके फील्ड्स आए हैं। अभी आप देखेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फोनेटिक वगैरह वगैरह, और मेरे कस्टम फील्ड्स जो थे मेरे क्या थे, पैन, क्लाइंट आईडी, SIP बुक, ये मेरे क्रिएट हो गए। एक ही बार क्रिएट करना है आपने, बार बार क्रिएट नहीं करना है अलग अलग कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे मेरे डबल इसलिए आ रहे हैं, मैं दिखाने के लिए किया है कि मैंने 2 कॉन्टैक्ट में ऐड कर दिए थे, इसलिए आपको डबल दिख रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट में ऐड करना है। क्लियर है? ओके। अब आपने क्या करना है, अपने उस फाइल से यहाँ पे आपने डेटा पेस्ट करना है, ठीक है। डेटा पेस्ट करने के बाद आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है स्क्रॉल डाउन, इंपोर्ट, और इंपोर्ट करके सिलेक्ट फाइल करेंगे अपनी। जो फॉर्मेट आपका एक्सपोर्ट किया था आपने वहां से, उसी फॉर्मेट को पॉपुलेट करके सिलेक्ट फाइल करके आपने वो फाइल इंपोर्ट करनी। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा, सभी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर उसी तरीके से जैसे गौतम सर का जो फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, वो फील्ड्स आपकी सारी की सारी पॉपुलेट हो जाएंगी। क्लियर है? तो आपके पास कॉन्टैक्ट के ऊपर सारी की सारी डिटेल मेंटेन होनी शुरू हो गई। नाउ इफ यू वांट टू ऐड एनी नोट्स, you can simply click on the edit button. When you talk to the customer, you can write note 1, note 2, and start the note with the date. So let's say आज की डेट है 30th of May 26। पहले ये लिखिए, अपना नोट लिखिए, और उसके बाद अपना जो भी कल अगर बात हुई है तो 31st of May 2026 लिखिए, और इसको सेव कर दीजिए। तो आपके हमेशा वो नोट्स सेव रहेंगे। इससे बेहतर तरीका चाहते हैं जिससे कि आपको पूरी ट्रेल नजर आए और डेट भी ना एंटर करनी पड़े, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का एक टूल आता है जिसका वेबसाइट का नाम है hypothesis.is। ये भी टूल मैं आपको दूंगा, इसकी पूरी वीडियो है, ठीक है। और ये एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, तो गूगल क्रोम पे ही चलेगा। आई सी सम हैंड रेजिंग, आपके क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आई वुड स्टिल वांट यू टू राइट दोस क्वेश्चंस डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पिक्चर ऑफ द पेपर at the end of the meeting and send me the specific photo on my WhatsApp, and I will also send you a feedback form जिसके अंदर आप क्वेश्चंस अपने कर पाएंगे, जिनके मैं सारे के सारे रिस्पॉन्सेज दूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी द डेमो। गौतम करमारकर के ऊपर मैं नोट्स डालना चाहता हूं और लिखना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या एक्टिविटी कब कब करी है। अब आप अगर मेरी जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसके यहाँ पर मैं एक बार हाइट फ्लोटिंग कंट्रोल और कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मेरा बटन दिखेगा, यहाँ पे हाइपोथेसिस देख रहे हैं।
हाइपोथेसिस करके एक बटन दिख रहा है. लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस. ओके, मैं पहले एक जगह पे लिंक्डइन खोल लेता हूँ. हेलो हाँ जी, सर, हाँ जी. बोल रहे कि आपका ये जो सेशन है ये तो 1 हफ्ता में नहीं होगा, 2-3 हफ्ता लास्ट लगेगा. फ्राइडे सर. हाँ, सो प्लीज कि सेकेंड सेशन हम लोग का है तो उसके लिए उसमें कवर कर लेंगे हम. हाँ, तो सेकेंड नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाँ, क्योंकि आज हमारा दूसरा सेशन भी है, ठीक इसलिए है, ठीक है ना. नो क्योंकि प्रॉब्लम आपका अबाउट इट. ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन हाँ की जी. दो बट दिन इज इट समथिंग यूजफुल? इज इट समथिंग? डेफिनेटली ये तो जरूरी है, सबके लिए जरूरी है. एक फुल डे चाहिए, फुल डे। हाँ, फुल नेक्स्ट फुल डे वीक चाहिए. नहीं, छोटा छोटा करके करेंगे. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल प्रॉब्ली मेक श्योर के हम लोग छोटे छोटे पीसेस में ले रहे हैं. ठीक है. आई थिंक इट वाज क्वाइट अ हेवी सेशन ऑलरेडी. हाँ, तो ऑलरेडी हाँ हाँ ऑलरेडी हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो आई थिंक इसके बाद भी और टूल्स आने वाले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा. वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा. मैं एक लास्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. आप प्लीज उस स्क्रीन की फोटो ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए. हाँ, एक सेकंड. तो एक another सेकंड. 1 minute, अनदर another 1 one. मिनट. प्लीज प्लीज टेक आउट योर कैमरास. प्लीज टेक आउट योर कैमरास. Please take a picture of the screen. Please take a picture of your notes and send it to me. और ये QR कोड्स के ऊपर आपको वो मेरी टूल किट भी मिल जाएगी. Any questions? Please scan the feedback request वाला QR and submit your questions there. जो सेंटर में QR दिख रहा है आपको, वहां पे आपको मेरी टूल किट का लिंक मिलेगा. आप रिक्वेस्ट टू शेयर कर सकते हैं. आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट. I have already shared in my all groups this screen. Okay. Thank you, sir. I will So thank stop you the so share. thank you so much, sir. We need Pleasure is your mine. complete help, and so next week you take 2 hour sessions, नहीं सर, 9:30 दो to 11:30. घंटे ज्यादा हो जाएंगे. Then इतना तो एब्जॉर्ब ये नहीं कर वो पाते लोग. हाँ, वही मेन प्रॉब्लम वही है हाँ. कि तो दिस इज आई ओपनिंग. आई थिंक मैनी डिस्ट्रीब्यूटर जो खजाना को आप जो दिखाया कहाँ खजाना है, ये अगला दिन तो और कुछ खजाना आप दिखाएंगे कहाँ जो हिडन एयूम है, वो आज तो थोड़ा पता चल गया. सर पहले अपने आप को ठीक करना है. जो मैंने पहले जो स्टोरी बताया था मैंने आपको, पहले अपने आप को ठीक करना है. उसके बाद स्टोरी ठीक होगा. आपकी स्टोरी यस ठीक होगा. यस हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, व्हाट इज योर बैकग्राउंड. प्लीज यस. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. कोई स्टैंडी ले लो. हाँ, कोई फोन को खड़ा करने के लिए कोई वो आता है, ट्राइपॉड आता है, ट्राइपॉड ले लो. ऐसे घूमते फिरते तो ऐसे नहीं करना है मीटिंग. thank you so much प्लेजर. for today's session. Now we are taking a 3 to 5 minutes break. After that we continue. Please stay in the session
Sure, just sir. I'll leave. take a break, just 2-3 minutes, and we started another session. ठीक है Thank you सर. so much, sir. Pleasure, sir. Have a good day, Thank you. everyone. Oh, good day. If you're 15, 16, 17, 18, and you're starting from scratch, I would spend every second. I would research it. I would read it. I would get a group of friends around it. Listen to podcasts while I'm asleep. I would be in it nonstop. AI is like a mentor. You can tell it to act like the people you admire. I talked to a guy the other day. 6 weeks he's been building his new software. 10K. He's never written. How did he learn to do this? AI. If you were starting today, use it as your strategy, as your storytelling. If you're 15, 16, 17, 18, and you're starting from scratch. हाँ जी. हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल. एग्जिट कर दीजिए. अच्छा, अच्छा टर्नआउट है ये तो. अभी आपको कुछ नहीं करना. अभी होल्ड ऑन. अभी क्या है, मैंने ये जो लास्ट स्क्रीन दी थी, आपने फोटो ली थी उसकी. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छा. ये उनके लिए जो सिंगल वाले लोग हैं ना, सोलो डिस्ट्रीब्यूटर्स. सोलो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं लेने वाले सीआरओ. जो लिंक. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. कि हम जो अगले सेशन में ना हम लोग ये जो फ्री और पेड में फर्क भी बताने वाले, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता फ्री में. टीम क्यों नहीं मैनेज हो सकती, टीम पे असाइनमेंट क्यों नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह.